عشق حقیقی۔ عشق اور محبت کے بارے میں اخلاق کا نظریہ وہی تھا جو اکثر عاشقوں اور محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ رانجھے پیر کا چیلا تھا۔ عشق میں مر جانا اس کے نزدیک ایک عظیم و شان موت مرنا تھا۔ اخلاق 30 برس کا ہو گیا، مگر باوجود کوششوں کے اس کو کسی سے عشق نہ ہوا۔ لیکن ایک دن اینگرڈ برگ مین کے پکچر فار ہوم دا بیل ٹولز کا میٹنے شو دیکھنے کے دوران میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس برقع پوش لڑکی سے وابستہ ہو گیا ہے جو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور سارا وقت اپنی ٹانگ ہلاتی رہی تھی۔ پردے پر جب سائیں کم اور روشنی زیادہ ہوتی تو اخلاق نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے، ناک کی پھنک پر چند بوندیں تھیں۔ جب اخلاق نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ ہلنا بند ہو گئی۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنے سیاہ برقعے کی جالی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ حرکت کچھ ایسی تھی کہ اخلاق کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کے کان میں کچھ کہا، دونوں ہولے ہولے ہنسی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے نقاب اپنے چہرے سے ہٹا لیا، اخلاق کی طرف تیکھی تیکھی نظروں سے دیکھا اور ٹانگ ہلا کر فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اخلاق سگریٹ پی رہا تھا۔ اینگرڈ برگ مین اس کی محبوب ایکٹریس تھیں۔ فار ہوم دا بیل ٹولز میں اس کے بال کٹے ہوئے تھے۔ فلم کے آغاز میں جب اخلاق نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی پیاری معلوم ہوئی، لیکن ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی دیکھنے کے بعد وہ اینگرڈ برگ مین کو بھول گیا۔ یوں تو قریب قریب سارا فلم اس کی نگاہوں کے سامنے چلا، مگر اس نے بہت ہی کم دیکھا۔ سارا وقت وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ اخلاق سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے راکھ جھاڑی تو اس کا سگریٹ انگلیوں سے نکل کر اس لڑکی کی گود میں جا پڑا۔ لڑکی فلم دیکھنے میں مشغول تھی، اس لیے اس کو سگریٹ گرنے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اخلاق بہت گھبرایا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کے برقعے پر سے اٹھایا اور فرش پر پھینک دیا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخلاق نے فوراً کہا، معافی چاہتا ہوں، آپ پر سگریٹ گر گیا تھا۔ لڑکی نے تیکھی تیکھی نظروں سے اخلاق کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر اس نے اپنی سہیلی سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ دونوں ہولے ہولے ہنسی اور فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئیں۔ فلم کے اختتام پر جب قائد اعظم کی تصویر نمودار ہوئی تو اخلاق اٹھا۔ خدا معلوم کیا ہوا کہ اس کا پاؤں لڑکی کے پاؤں کے ساتھ ٹکرایا۔ اخلاق ایک بار پھر سرتاپا معذرت بن گیا، معافی چاہتا ہوں، جانے آج کیا ہو گیا ہے۔ دونوں سہیلیوں ہولے ہولے ہنسی۔ جب بھیڑ کے ساتھ باہر نکلی تو اخلاق ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ لڑکی جس سے اس کو پہلی نظر کا عشق ہوا تھا مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ اخلاق نے اس کی پرواہ نہ کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا مکان دیکھ کے رہے گا۔ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر YMCA کے سامنے اس لڑکی نے مڑ کر اخلاق کی طرف دیکھا اور اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی۔ اخلاق نے آگے نکلنا چاہا تو وہ لڑکی اس سے مخاطب ہوئی، آپ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اخلاق نے ایک لحظہ سوچ کر جواب دیا، میں آپ کے آگے آگے کیوں جا رہی ہیں؟ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد اس نے اپنی سہیلی سے کچھ کہا، پھر دونوں چل پڑی۔ بس سٹینڈ کے پاس اس لڑکی نے جب مڑ کر دیکھا تو اخلاق نے کہا، آپ پیچھے آ جائیے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ لڑکی نے منہ موڑ لیا۔ انارکلی کا موڑ آیا تو دونوں سہیلیاں ٹھہر گئیں۔ اخلاق پاس سے گزرنے لگا تو اس لڑکی نے اس سے کہا، آپ ہمارے پیچھے نہ آئیے، یہ بہت بری ہے۔ لہجے میں بہت سنجیدگی تھی۔ اخلاق نے بہت بہتر کہا اور واپس چل دیا۔ اس نے مڑ کر بھی ان کو نہ دیکھا، لیکن دل میں اس کو افسوس تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے نہ گیا۔ اتنی دیر کے بعد اس کو اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کو کسی سے محبت ہوئی ہے، لیکن اس نے موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اب خدا معلوم پھر اس لڑکی سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ جب YMCA کے پاس پہنچا تو رک کر کراس نے انارکلی کے موڑ کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ وہ تو اسی وقت انارکلی کی طرف چلی گئی تھی۔ لڑکی کے نقش بڑے پتلے پتلے تھے، باریک ناک، چھوٹی سی ٹھوڑی، پھول کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ جب پردے پر سائی کم اور روشنی زیادہ ہوتی تھی تو اس نے اس کے بالائی ہونٹ پر ایک تل دیکھا تھا جو بے حد پیارا لگتا تھا۔ اخلاق نے سوچا تھا کہ اگر یہ تل نہ ہوتا تو شاید وہ لڑکی نامکمل رہتی۔ اس کا وہاں پر ہونا اشد ضروری تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم تھے جن میں کنوار پن تھا۔ چونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک مرد میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس لیے ان کی ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں ایک بڑی پیاری لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا مڑ مڑ کر تو دیکھنا غضب تھا۔ گردن کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر وہ پیچھے اخلاق کی طرف دیکھتی اور تیزی سے منہ موڑ لیتی۔ دوسرے روز وہ انگرڈ برگمین کا فلم پھر دیکھنے گیا۔ شو شروع ہو چکا تھا۔ والٹ ڈزنی کا کارٹون چل رہا تھا کہ وہ اندر ہال میں داخل ہوا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔
गेट कीपर की बैटरी की अंधी रोशनी के सहारे उसने टटोल टटोल कर एक खाली सीट तलाश की और उस पर बैठ गया। डिज्नी का कार्टून बहुत मज़ाहिया था। इधर उधर कई तमाशाई हंस रहे थे। दफतन बहुत ही करीब से अखलाक को ऐसी हंसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर उसने पीछे देखा तो वही लड़की बैठी थी। अखलाक का दिल धक धक करने लगा। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्ल और सूरत के एतबार से वो उसका भाई लगता था। उसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटरवल हो गया। इखलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह ना देख सका। रोशनी हुई तो वो उठा। लड़की के चेहरे पर नकाब था, मगर इस महीन पर्दे के पीछे उसकी आंखें इखलाक को नजर आईं, जिनमें मुस्कुराहट की चमक थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकालकर सुलगाया। इखलाक ने अपने जेब में हाथ डाला और उससे मुखातिब हुआ, जरा माचिस इनायत फरमाइए। लड़की के भाई ने उसको माचिस दे दी। इखलाक ने अपना सिगरेट सुलगाया और माचिस उसको वापस दे दी। शुक्रिया। लड़की की टांग हिल रही थी। इखलाक अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकाया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मर्तबा उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। इससे ज्यादा वो कुछ ना कर सका। फिल्म खत्म हुआ। लोग बाहर निकलने शुरू हुए। लड़की और उसका भाई साथ थे। इखलाक उनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंडर्ड के पास भाई ने अपनी बहन से कुछ कहा। एक टांगे वाले को बुलाया। लड़की उसमें बैठ गई। लड़का स्टैंडर्ड में चला गया। लड़की ने नकाब में से इखलाक की तरफ देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। टांगा चल पड़ा। स्टैंडर्ड के बाहर उसके 3-4 दोस्त खड़े थे। उनमें से एक की साइकिल उसने जल्दी जल्दी पकड़ी और टांगे के ताकुब में रवाना हो गया। ये ताकुब बड़ा दिलचस्प रहा। जोर की हुआ चल रही थी। लड़की के चेहरे पर से निकाब उठ जाती। सिया जारजत का पर्दा फड़फड़ा कर उसके सफेद चेहरे की झलकियां दिखाता था। कानों में सोने के बड़े बड़े झूमर थे। पतले पतले होंठों पर सियाही माइल सुर्खी थी और बालाई होंठ पर तनल, वो अशद जरूरी तनल। बड़े जोर का झोंका आया तो अखलाक के सर पर से हैट उतर गया और सड़क पर दौड़ने लगा। एक ट्रक गुजर रहा था। इसके ओजनी पहिए के नीचे आया और वहीं चित गया। लड़की हंसी। अखलाक मुस्करा दिया। गर्दन मोड़कर हैट की लाश देखी जो बहुत पीछे रह गई थी और लड़की से मुखातिब होकर कहा, इसको तो शहादत का रतीब मिल गया। लड़की ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अखलाक थोड़ी देर के बाद फिर इससे मुखातिब हुआ, आपको एतराज है तो वापस चले जाता हूं। लड़की ने इसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब ना दिया। अनारकुल्ली की एक गिल्ली में टांगा रुका और वो लड़की उतरकर अखलाक की तरफ बार बार देखती निकाब उठाकर एक मकान में दाखिल हो गई। अखलाक एक पांव साइकिल के पैडल पर और दूसरा पांव दुकान के थाड़े पर रखे थोड़ी देर खड़ा रहा। साइकिल चलाने ही वाला था कि इस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खिली। लड़की ने झांक कर अखलाक को देखा मगर फौरन ही शर्मा कर पीछे हट गई। अखलाक तकरीबन आध घंटा वहां खड़ा रहा मगर वो फिर खिड़की में नुमदार ना हुई। दूसरे रोज अखलाक सुबह सवेरे अनारकली की इस गिल्ली में पहुंचा। 15-20 मिनट तक उधर उधर घूमता रहा। खिड़की बंद थी। मायूस होकर लौटने वाला था कि एक फालसे बेचने वाला सदा लगाता आया। खिड़की खिली। लड़की सर से नंगी नुमूदी हुई। इसने फालसे वाले को आवाज दी, भाई। फालसे वाले जरा ठहरना। फिर उसकी निगाहें एकदम अखलाक पर पड़ी। चौंक कर वो पीछे हट गई। फालसे वाले ने सर पर से छाबड़ी उतारी और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की सर पर दोपट्टा लिए नीचे आई। अखलाक को इसने कनखियों से देखा। शर्माई और फालसे लिए बगैर वापस चली गई। अखलाक को ये अदा बहुत पसंद आई। थोड़ा सा तरस भी आया। फालसे वाले ने जब इसको घोर के देखा तो वो वहां से चल दिया। चुल्लू आज इतना ही काफी है। चंद दिन ही में अखलाक और इस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज सुबह 9 बजे वो अनारकुली की इस गिल्ली में पहुंचता। खिड़की खुलती, वो सलाम करता, वो जवाब देती, मुस्कराती। हाथ के इशारों से कुछ बातें होती। इसके बाद वो चली जाती। एक रोज उंगलियां घुमाकर इसने अखलाक को बताया कि वो शाम के 6 बजे के शो सीमा देखने जा रही है। अखलाक ने इशारों के जरिया से पूछा, कौन से सीमा हाउस में? इसने जवाब में कुछ इशारे किए मगर अखलाक ना समझा। आखिर में इसने इशारों में कहा, कागज पर लिख कर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हट गई। चंद लम्हात के बाद इसने उधर उधर देखकर कागज की एक मुड़वरी सी नीचे फेंक दी। अखलाक ने इसे खोला। लिखा था,
प्लाजा परवीन। शाम को प्लाजा में इसकी मुलाकात परवीन से हुई। इसके साथ इसकी सहेली थी। अखलाक इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिल्म शुरू हुआ तो परवीन ने निकाब उठा लिया। अखलाक सारा वक्त इसको देखता रहा। इसका दिल धक धक करता था। इंटरवल से कुछ पहले इसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। वो कांप उठी। अखलाक ने फौरन हाथ उठा लिया। दरअसल वो इसको अंगूठी देना चाहता था, बल्कि खुद पहनाना चाहता था, जो इसने इसी रोज खरीदी थी। इंटरवल खत्म हुआ तो इसने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। वो कांपी, लेकिन अखलाक ने हाथ ना हटाया। थोड़ी सी देर के बाद इसने अंगूठी निकाली और उसकी एक उंगली में चढ़ा दी। वो बिल्कुल खामोश रही। अखलाक ने इसकी तरफ देखा। पेशानी और नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थरथरा रहे थे। फिल्म खत्म हुआ तो अखलाक और परवीन की ये मुलाकात भी खत्म हो गई। बाहर निकलकर कोई बात ना हो सकी। दोनों सहेलियां टांगे में बैठा। अखलाक को दोस्त मिल गए। उन्होंने इसे रोक लिया, लेकिन वो बहुत खुश था, इसलिए कि परवीन ने इसका तोहफा कबूल कर लिया था। दूसरे रोज मुकर्ररा औकात पर जब अखलाक परवीन के घर के पास पहुंचा तो खिड़की खिली थी। अखलाक ने सलाम किया। परवीन ने जवाब दिया। इसके दाहिने हाथ की उंगली में इसकी पहनाई हुई अंगूठी चमक रही थी। थोड़ी देर इशारे होते रहे। इसके बाद परवीन ने उधर उधर देखकर एक लिफाफा नीचे फेंक दिया। अखलाक ने उठाया, खोला तो इसमें एक खत था, अंगूठी के शुक्रिया का। घर पहुंचकर अखलाक ने एक तवील जवाब लिखा। अपना दिल निकाल कर कागजों में रख दिया। इस खत को इसने फूलदार लिफाफे में बंद किया। इस पर सनत लगाया और दूसरे रोज सुबह 9 बजे परवीन को दुखाकर नीचे लीटर बक्स में डाल दिया। अब उनमें बाकायदा खत व किताबत शुरू हो गई। हर खत इश्क और मोहब्बत का एक दफ्तर था। एक खत अखलाक ने अपने खून से लिखा, जिसमें इसने किस्म खाई कि वो हमेशा अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहेगा। इसके जवाब में खूनी तहरीर ही आई। परवीन ने भी हल्फ उठाया कि वो मर जाएगी, लेकिन अखलाक के सिवा और किसी को शरीक हयात नहीं बनाएगी। महीनों गुजर गए। इस दौरान में कभी कभी किसी सीमा में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। मिलकर बैठने का मौका उन्हें नहीं मिलता था। परवीन पर घर की तरफ से बहुत कड़ी पाबंदियां आयद थीं। वो बाहर निकलती थी या तो अपने भाई के साथ, अपनी सहेली जोहरा के साथ। उन दो के अलावा इसको और किसी के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अखलाक ने इसे कई मर्तबा लिखा कि जोहरा के साथ वो कभी इसे 12 दूरी में जहांगीर के मकबरे में मिले, मगर वो ना मानी। उसको डर था कि कोई देख लेगा। इस असना में अखलाक के वालिदैन ने इसकी शादी की बातचीत शुरू कर दी। अखलाक टालता रहा। जब उन्होंने तंग आकर एक जगह बात कर दी तो अखलाक बिगड़ गया। बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि अखलाक को घर से निकलकर एक रात इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड में सूना पड़ा। उधर परवीन रोती रही, खाने को हाथ तक न लगाया। अखलाक धान का बहुत पक्का था, जिद्दी भी परले दर्जे का था। घर से बाहर कदम निकाला तो फिर उधर रुख तक न किया। इसके वालिद ने इसको बहुत समझाया, मगर वो ना माना। एक दफ्तर में 100 रुपए माहवार पर नौकरी कर ली और एक छोटा सा मकान किराया पर लेकर रहने लगा, जिसमें नल था ना बिजली। उधर परवीन अखलाक की तकलीफों के दुख में घायल रही थी घर में। जब अचानक इसकी शादी की बातचीत शुरू हुई तो इस पर बिजली सी गिरी। इसने अखलाक को लिखा। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन परवीन को इसने तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, साबित कदम रहा। इश्क इनका इम्तिहान ले रहा है। 12 दिन गुजर गए। अखलाक कई बार गया, मगर परवीन खिड़की में नजर न आई। वो सब्र करार खो बैठा। नींद इसकी गायब हो गई। इसने दफ्तर जाना छोड़ दिया। ज्यादा नागे हुए तो इसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इसको कुछ होश नहीं था। बरतरफी का नोटिस मिला तो वो सीधा परवीन के मकान की चल पड़ा। 15 दिनों के तवील अरसे के बाद इसे परवीन नजर आई, वो भी एक लहजे के लिए। जल्दी से लिफाफा फेंक कर वो चली गई। खत बहुत तवील था। परवीन की गैर हाजिरी का बाइस ये था कि इसका बाप इसको साथ गुजरावाला ले गया था, जहां इसकी बड़ी बहन रहती थी। 15 दिन वो खून के आंसू रोती रही। इसका जहेज तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसको महसूस होता था कि इसके लिए रंग बरंगे कफन बन रहे हैं। खत के आखिर में लिखा, तारीख मुकर्रर हो चुकी है,
मेरी मौत की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मैं मर जाऊंगी, मैं जरूर कुछ खा के मर जाऊंगी। इसके सिवा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, एक और रास्ता भी है, लेकिन मैं क्या इतनी हिम्मत कर सकूंगी? तुम भी इतनी हिम्मत कर सकोगे? मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तुमने मेरे लिए घर बार छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए ये घर नहीं छोड़ सकती जहां मेरी मौत के सामान हो रहे हैं। लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊंगी, जेवर वगैरह सब उतार कर यहां फेंक दूंगी। जवाब जल्दी दो, हमेशा तुम्हारी परवीन। अखलाक ने कुछ न सोचा, फौरन इसको लिखा, मेरी बहन तुम्हें अलिफ पन्ने आगोश में लेने के लिए तड़प रही है। मैं तुम्हारी इज्जत और इस्मत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। तुम मेरी रफीका हयात बन के रहोगी, जिंदगी भर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। 1-2 खत और लिखे गए। इसके बाद तय किया कि परवीन बुध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। अखलाक टांगा लेकर गिल्ली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार करे। बुध को मुन अंधेरे अखलाक टांगे में वहां पहुंचकर परवीन का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए। अखलाक का इस्तिराब बढ़ गया, लेकिन वो आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गिल्ली में नमूदार हुई। चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में अखलाक के साथ बैठी तो सुरतापा कांप रही थी। अखलाक खुद भी कांपने लगा। घर पहुंचे तो अखलाक ने बड़े प्यार से इसके बुरक़े की निकाब उठाई और कहा, मेरी दुल्हन कब तक मुझसे पर्दे करेगी? परवीन ने शर्मा कर आंखें झुका लें। इसका रंग जर्द था, जिस्म अभी तक कांप रहा था। अखलाक ने बालाई होंठ के तूल की तरफ देखा तो इसके होंठों में एक बोसा तड़पने लगा। इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसने तुल वाली जगह को चूमा। लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊंगी, जेवर वगैरह सब उतार कर यहां फेंक दूंगी। जवाब जल्दी दो, हमेशा तुम्हारी परवीन। अखलाक ने कुछ न सोचा, फौरन इसको लिखा, मेरी बहन तुम्हें अलिफ पन्ने आगोश में लेने के लिए तड़प रही है। मैं तुम्हारी इज्जत और इस्मत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। तुम मेरी रफीका हयात बन के रहोगी, जिंदगी भर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। 1-2 खत और लिखे गए। इसके बाद तय किया कि परवीन बुध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। अखलाक टांगा लेकर गिल्ली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार करे। बुध को मुन अंधेरे अखलाक टांगे में वहां पहुंचकर परवीन का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए। अखलाक का इस्तिराब बढ़ गया, लेकिन वो आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गिल्ली में नमूदार हुई। चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में अखलाक के साथ बैठी तो सुरतापा कांप रही थी। अखलाक खुद भी कांपने लगा। घर पहुंचे तो अखलाक ने बड़े प्यार से इसके बुरक़े की निकाब उठाई और कहा, मेरी दुल्हन कब तक मुझसे पर्दे करेगी? परवीन ने शर्मा कर आंखें झुका लें। इसका रंग जर्द था, जिस्म अभी तक कांप रहा था। अखलाक ने बालाई होंठ के तूल की तरफ देखा तो इसके होंठों में एक बोसा तड़पने लगा। इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसने तुल वाली जगह को चूमा। परवीन ने ना कि इसके होंठ खिले, दांतों में गोश्त खोरा था। मसूड़े गहरे नीले रंग के थे, गिले हुए। सलांत का एक बेबका अखलाक की नाक में घुस गया। एक धक्का सा इसको लगा। एक और बेबका परवीन के मुंह से निकला तो वो एकदम पीछे हट गया। परवीन ने हया आलूद आवाज में कहा, शादी से पहले आपको ऐसी बातों का हक नहीं पहुंचता। ये कहते हुए इसके गिले हुए मसूड़े नुमाया हुए। अखलाक के होशो होश गायब थे, दिमाग सुन गया। देर तक वो दोनों पास बैठे रहे। अखलाक को कोई बात नहीं सूझती थी। परवीन की आंखें झुकी हुई थीं। जब इसने उंगली का नाखून काटने के लिए होंठ खोले तो फिर उन गिले हुए मसूड़ों की नुमाइश हुई। बोका एक बेबका निकला। अखलाक को मतली आने लगी। उठा और अभी आया कहकर बाहर निकल गया। एक थले पर बैठकर इसने बहुत देर सोचा। जब कुछ समझ में न आया तो लाइलपुर रवाना हो गया, जहां इसका एक दोस्त रहता था। अखलाक ने सारा वाकया सुनाया तो इसने बहुत लानतान की और उससे कहा, फौरन वापस जाओ, कहीं बेचारी खुदकशी न कर ले। अखलाक रात को वापस लाहौर आया। घर में दाखिल तो परवीन मौजूद नहीं थी। पलंग पर तकिया पड़ा था।
इस पर 2 गोल गोल निशान थे, गीले। इसके बाद अखलाक को परवीन कहीं नजर न आई। आजिज़ाना अपील। दोस्तों, अगर आपको हमारे अफसाने पसंद आ रहे हैं तो बराए करम हमारे चैनल ब्रांड अफसाने को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमें हौसला देता है कि हम उर्दू अदब, एहसासात और ज़िंदगी की सच्चाइयों पर मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ लेकर आएँ। हमारी ये काविश सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उर्दू अदब से मोहब्बत का सफ़र है। आपका साथ ही हमारी असल ताकत है। अभी सब्सक्राइब करें और उर्दू अफसानों की दुनिया में हमारे हमसफ़र बने।